In this video, we are going to study about the next optical instrument, that is your telescope. Clear? So in the first lecture of the optical instrument, I have classified all the optical instruments and tells about the basic construction of the optical instruments. Clear? So, on coming to the telescope, I have already told you that telescopes are of two types. The first one is your refracting type telescope, and the second one is your reflecting type telescope. The refracting type telescope is what? The telescope which contains only lenses. That means the telescope in which only refraction processes occur is said to be your refracting type telescope, and the examples of refracting type telescope is your astronomical telescope, terrestrial telescope, correct, etc. And the second one was your reflecting type telescope, and reflecting type telescopes are what? The telescope in which reflection may be occur. It means during the construction of telescope the reflection process occurs. It means कि the telescope contains mirrors as well as your lenses. Clear? So that is said to be your reflecting type telescope. The world's biggest reflecting type telescopes is near at the China. ये बात समझ में आ रही है. And from that telescope it can see the object clearly, situated much more light years from the earth. Clear? The next thing is your there are the more telescopes are present over there, that is the quanta telescopes is also present, जिसको कि अपन यहाँ नहीं पढ़ते, बट यहाँ पर अपन ये क्या है कि ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है. वी आर studying about only two type of telescope, that is your refracting telescope and the next one is your reflecting telescope. Clear? So on moving to the series of the telescope, we are going to study about the refracting telescope. रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का एग्जांपल है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. तो चाहे एस्ट्रोनॉमिकल पढ़िए चाहे टेरेस्ट्रियल पढ़िए, बोथ आर सेम. दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होगा एज वेल एज दोनों की मैग्नीफाइंग पावर भी क्या होगी आपकी, सेम होगी. क्लियर? सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और उसमें भी किसको पढ़ेंगे अपन, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को पढ़ेंगे. So I am going to put the heading over here, that is your astronomical, पूरा नाम लिख देता हूं इसको, ये astronomical refracting type telescope. Clear? The telescope जिसको पढ़ने जा रहे हैं, that is your astronomical refracting type telescope. And the example of this इस टेलीस्कोप में भी we have to study about two cases. The first case is what? That is your angular adjustment. Clear? फर्स्ट केस क्या है यहाँ पर आपका, ये एंगुलर एडजस्टमेंट. ठीक. तो व्हाट इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप? So I already told you that in the refracting type telescope we again uses the two lenses like your compound microscope. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी वी हैव यूजेस द टू लेंसेज. द फर्स्ट लेंस को क्या बोला था अपन ने, ये दैट इज योर आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड द सेकंड लेंस वाज योर आईपीस. तो यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, एक आईपीस होगा, बशर्ते यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह से इनमें थोड़ा सा क्या होगा आपका, ये रिवर्सिबल रिलेशन होगा. रिवर्सिबल रिलेशन का मतलब क्या है यहाँ पर आपका, ये कि जहाँ वहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉल होता था, आईपीस बड़ा होता था, वहीं यहाँ पर टेलीस्कोप का जो लेंस रहेगा ऑब्जेक्टिव वो बड़े अपर्चर का रहेगा, और आईपीस कैसा रहेगा आपका, ही छोटे अपर्चर का रहेगा. क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि देखो, जब कोई छोटा बच्चा मेले से जाता है तो मेले में वो एक डिवाइस खरीदता है जिसको दूरबीन बोलते हैं लोग. ये बात समझ में आ रहा है? हार्डली 80 to 90 रुपीज़ का आता है दूरबीन. तो उस दूरबीन में देखोगे आप तो दो ट्यूब लगी रहती हैं, ऐसे पकड़ते हो आप, दो ट्यूब यहाँ पर लगी रहती हैं, और एक आगे की तरफ रहता है आपका ये लेंस, आगे की तरफ दो लेंस रहेंगे और पीछे की तरफ भी दो लेंस रहेंगे. टेलीस्कोप सिंगल आइड भी आता है, डबल आइड भी आता है. ये बात समझ में आ रहा है? तो वो जो दूरबीन आपने खरीदा वो डबल आइड खरीदा. तो वहां पर क्या है, ये बेसिकली कि उसका नाम दूरबीन नहीं होना चाहिए, उसका नाम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप उससे पास के भी ऑब्जेक्ट देख सकते हो, आप उससे दूर के भी ऑब्जेक्ट देख सकते हो. अब बेसिकली अगर उसमें केवल एक ट्यूब इधर होती है और एक ट्यूब इधर, केवल एक ट्यूब की बात करूंगा तो यहाँ पर आगे एक लेंस होता है और यहाँ पर भी आगे एक लेंस होता है. अगर ये लेंस बड़ा और ये लेंस छोटा है तो आपके पास वाला लेंस अगर छोटा है तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, टेलीस्कोप की तरह. लेकिन अगर इसी को अपन रिवर्स कर देंगे तो अब ये छोटा हो गया और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, और आई के पास लगाया तो आई पीस बड़ा हो गया, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करेगा. ये बात समझ में आ रही है? और दूरबीन में कुछ ऐसा भी होता है कि जो स्लाइड कराते हैं ना इस तरीके से, ये कुछ रहता है उसमें एक स्क्रू टाइप का, उसको अगर आप स्लाइड कराओगे तो ये लेंसेज के बीच की डिस्टेंस क्या होती जाती है आपकी, बढ़ती घटती जाती है.
तो जब आप दूरबीन यूज़ करते हो तो उसमें एक अरेंजमेंट रहता है, एक नॉब रहती है, उस नॉब को रोटेट करने से लेंसेज के बीच का गैप क्या होता है, एडजस्ट होता है, और उस गैप के एडजस्ट होने से इमेज आपको कब क्लियर दिखेगी वो आपको समझ में आ जाता है। ये बात समझ में आ रही। तो अपन हैंड से कौन सा मोशन देते हैं, यहाँ पर रोटरी मोशन देते हैं। अपन कौन सा मोशन दे रहे हैं, यहाँ से रोटरी मोशन दे रहे हैं। और जब लेंसेज के बीच का गैप जो क्या हो रहा है आपका, ये एडजस्ट हो रहा है, ये कौन सा मोशन है आपका, लीनियर मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अपन ने कौन सा मोशन दिया, रोटरी मोशन। और अंदर कौन सा मोशन पहुंचा आपका, लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन, या कैसा पहुंचा, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो एक डिवाइस होती है हमारे पास, और एक डिवाइस का एक मैकेनिज्म है हमारे पास। उस मैकेनिज्म में ये होता है कि जब भी अपन रोटरी मोशन देंगे ना, तो वहां पर हमें कौन सा मोशन मिलेगा, रोटरी मोशन। इनपुट अपन रोटरी मोशन देंगे, आउटपुट कैसा मिलेगा, ट्रांसलेटरी मोशन। तो उस तरीके की मैकेनिज्म को बोलते हैं यहाँ पर बच्चा ये, दैट इज योर रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। क्लियर। इस मैकेनिज्म में आप रोटरी मोशन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर। सो रैक एंड पिनियम के आपकी ये एक मैकेनिज्म है जिसको अपन रोटरी मोशन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, दोनों में ही इस अरेंजमेंट का क्या किया जाता है आपका, ये यूज किया जाता है। ये बात समझ में आ रही है। तो दैट इज अबाउट योर रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। और ये किस लिए हेल्प होती है, ताकि आप दोनों लेंसेज के बीच प्रेजेंट डिस्टेंस को क्या कर सको, आप यहाँ से अच्छे से मेंटेन कर सको। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हटा रही है, तो वी आर गोइंग फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के किस एडजस्टमेंट में जा रहे हैं अपन, ये एंगुलर एडजस्टमेंट में जा रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब अपन यहाँ पर ये एंगुलर एडजस्टमेंट में जाते हैं तो इस कंडीशन पर क्या है ये, तो सबसे पहले इस टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इस टेलीस्कोप के कंस्ट्रक्शन में हमारे पास दो लेंसेज होते हैं ये। तो दिस इज सेड टू बी द फर्स्ट लेंस, जिसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। क्यों ऑब्जेक्टिव लेंस बोल रहे हैं इसको, ये तो ध्यान समझना, इट इज क्लोजर टू ऑब्जेक्ट। और जो यहाँ पर जो दूसरा लेंस होता है ये, इस लेंस को क्या बोलते हैं यहाँ पर अपन ये, दैट इज योर आई पीस बोलते हैं। क्लियर। इसका ऑप्टिकल सेंटर C2 लेते हैं और इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या लेते हैं अपन, ये C1 लेते हैं। अब हमें ये पता है कि इन द केस ऑफ योर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप द अपर्चर साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज मच मोर देन द अपर्चर साइज ऑफ योर आई पीस। क्लियर। सपोज तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी ले ली अपन ने, f0 ले ली। आई पीस की फोकल लेंथ कितनी ले ली अपन ने, ये f ही ले ली। टेलीस्कोप किस लिए यूज करते हैं, तो जब एक दूर का ऑब्जेक्ट अपने को क्लियर नहीं दिखाई देता, जब एक दूर का ऑब्जेक्ट अपने को क्लियर नहीं दिखाई देता, और उसको क्लियर देखने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, टेलीस्कोप का। इसका मतलब टेलीस्कोप के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, बहुत दूर होता है। बहुत दूर का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना दूर हो सकता है, इनफाइनाइट पर। तो जब भी अपन टेलीस्कोप का रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ पर लेंगे, इनफाइनाइट पर लेंगे। अब अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो उससे किस तरीके की रेज आती हैं, तो इनफाइनाइट पर रखे ऑब्जेक्ट से कैसी रेज आती हैं, आपकी पैरेलल रेज आती हैं। वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो सकती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी नहीं हो सकती। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके कहाँ मीट करेंगी, फोकस पर। लेकिन अगर वो पैरेलल है बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ पर जाकर मीट करेंगी, फोकल प्लेन पर। और फोकल प्लेन कहाँ पर होता है, जस्ट एक ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और कहाँ से होकर पास हो रहा हो, आपके ये फोकस से होकर पास हो रहा हो। सो अपन क्या करते हैं यहाँ पर ये कि इस तरीके से ये है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, ये इनफाइनाइट पर। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो ऑब्जेक्ट से अपन दो रेज लेते हैं। द वेरी फर्स्ट रे इज व्हाट, द रे विच इज कमिंग लाइक दिस, एंड द सेकेंड रे विच इज पैरेलल टू दिस वन। ये बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें ही। तो ये रे जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, ये कैसे निकल जाएगी, बिल्कुल आपकी ये सीधे निकल जाएगी इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है। और ये जो रेज है आपकी ये कैसी चली जाएगी, आपकी ये लेंस है, थोड़ा सा क्या कर देगा, इसको ये कन्वर्ज कर देगा आपका ये रेस को क्या कर देगा आपका ये, दैट इज इट कन्वर्जेस द रेस। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें ही। ऑब्जेक्टिव लेंस को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, और बड़ा कर दिया ये, ठीक। अब यहाँ पर देखो, जहां भी ये पॉइंट मिल रही है, जहां पर भी ये रेस क्या हो रही है आपकी, ये मिल रही है, तो ये जो रेस हैं ये यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या बनाया इन्होंने, ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनाए। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट कौन सा है आपका, बी है। और किस पॉइंट पर मिलेंगी, तो ये चूंकि यहाँ पर रेस कैसी थी, पैरेलल थी, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो वो हमेशा कहाँ पर मिलती, फोकल प्लेन पर मिलती। और फोकल प्लेन क्या होता है आपका, एक ऐसा प्लेन
जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और साथ ही साथ फोकस होकर पास हो, मतलब इसकी साइज तो कैसी आपकी ए बी है, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा है आपका, ये दैट इज योर एफ नॉट। ये बात समझ में आ रहा, मतलब कोई पूछे इस लेंस का फोकस कहाँ पर है, तो इस लेंस का फोकस आपका यहाँ पर है, दैट इज योर एफ नॉट। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इनफाइनाइट पर। इसका मतलब यू नॉट की वैल्यू कहाँ पर हो गई आपकी, इनफाइनाइट पर। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर, तो इमेज कहाँ पर मिलेगी, हमेशा फोकस पर मिलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई, जिसको आप क्या बोलते हैं कि भाई ये फर्स्ट लेंस से बनने वाले ऑब्जेक्ट की यहाँ पर इमेज है, ये जो डिस्टेंस इसको आप वी नॉट बोलते हैं, जो कि किसके इक्वल हो गया है, यहाँ पर आपको ये एफ नॉट के इक्वल हो गया। और मैं इस लेंस को क्या कर देता हूँ, आपका ये कवर कर देता हूँ। ये बात समझ में आ रहा है, ये कोई प्रॉब्लम इसमें? क्यों यहाँ ये फोकस ले रहा हूँ, क्योंकि रेस कैसी थी, पैरेलल थी बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये काफी दिन पहले बताया हुआ कॉन्सेप्ट है कि जब भी पैरेलल रेस जाती है बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमेशा कहाँ पर मिलती है, फोकल प्लेन पर। तो यहाँ कहीं फोकल प्लेन है और कहाँ से पास होगा, वो फोकस से। तो इसका मतलब इस लेंस का फोकस कहाँ पर है, कहीं यहाँ पर है ये। तो इसका मतलब इस इमेज की जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये कहाँ पर इसके इक्वल है, फोकस के। तो ना कि इसका फोकस कहाँ पर है आपका, ये दैट इज योर यहाँ पर है। और ये जो इमेज बन रही है, इसका नाम कितना ले लिया आपने, ये एफ नॉट ले लिया, सॉरी ए बी नाम दे दिया इसका। ये बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद देखो ध्यान से, ये इस लेंस के थ्रू जो इमेज बन रही है, इस लेंस के थ्रू जो इमेज बन रही है, वो इस लेंस के लिए किसका वर्क करेगी, आपका ये ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। अब यहाँ कौन सा एडजस्टमेंट है, एंगल एडजस्टमेंट है। तो मेन यहाँ पर जो टेलीस्कोप का काम करना है, ये आईपीस को ही करना होगा। आईपीस के आई से लगा हुआ लेंस ही प्रॉपरली क्या करता है, टेलीस्कोप का काम करता है। सो यहाँ पर है कि आपका ये कि जब यहाँ पर इसकी इमेज बनी, तो इसकी इमेज इसके लिए क्या है, आपका ये ऑब्जेक्ट है। तो नो डाउट ये कौन सा एडजस्टमेंट है, एंगल एडजस्टमेंट है। तो अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहेंगे, तो अपन ऑब्जेक्ट को रखना चाहेंगे इस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इसका मतलब अगर इसका फोकस एफ ही है और ये अगर क्या है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो अपन यहाँ कहीं एज्यूम कर लेंगे ये क्या हो गया आपका, ये दैट इज इट्स फोकस। और अगर यहाँ पर इसका फोकस है, तो इस लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर आ चुका है आपका, ये दैट इज योर, ये आ चुका है इसके, ये आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब यहाँ पर आईपीएस के ऑब्जेक्ट की पहचान हमने कर ली। आईपीएस का ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्यों लिया उसको उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, क्योंकि एडजस्टमेंट कौन सा, एंगल एडजस्टमेंट है। जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तो इमेज कहाँ पर बनेगी आपकी, ये दैट इज योर 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि भाई इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसने कहाँ बनाई है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसने कहाँ बनाई, तो यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, ये कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, ये इस तरीके से आई और ये रेस क्या हुई, इस तरीके से आई। मैंने कहा था कि जब भी आपको इस तरीके से रे डायग्राम बनाना पड़े और इस ऑब्जेक्ट की जब भी इमेज देखना हो, तो इस ऑब्जेक्ट से कभी भी कोई भी नई रेज आप नहीं लेंगे। जो भी रेज लेंगे वो एग्जिस्टिंग रेज लेंगे, जो रेज आपकी पहले से क्या है, आपकी प्रेजेंट है। इस लेंस की साइज मुझे पता चल गई, इस लेंस को भी क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पर ये कंप्लीट कर देता हूँ। ये बात समझ में आ रही है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसका अपर्चर ज्यादा है, और ये आई पीस है जिसका अपर्चर क्या है आपकी, ये कम। तो अब यहाँ से मैंने कल आपको एक चीज समझाई थी, और वो क्या चीज समझाई थी आपकी, ध्यान समझना ये कि जब ये हो जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से इसको मिलाते हैं इस तरीके से, और कहीं तक भी ले जाते हैं, जहां तक मन करे वहां तक ले जाओ, जहां थक जाओ वहां पर क्या बना दो, आप एक इमेज बना दो। ये बात समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया, ए डैश, और ये क्या नाम दे दिया इसको, बी डैश। ठीक है, फिर इसके बाद क्या रहेगा आपका, ये कि दैट इज योर, इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ से इसको मिलाते हैं, यहाँ से इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, और यहाँ से इसको मिलाएंगे। सो यहाँ से क्या किया अपन ने, इसको इस तरीके से मिला दिया, और यहाँ से इस रे को भी क्या कर दिया अपन ने, मिला दिया डॉटेड लाइन। और फिर इधर क्या कर देते हैं, इनको एक्सटेंड कर देते हैं इधर की तरफ, और यहां पर बना देते हैं आप ये, दैट इज योर आई। तो ध्यान से देखो हुआ क्या, ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा था आपका, ये ऑब्जेक्ट वाज एट इनफाइनाइट। क्लियर। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर था, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये कि अगर ये ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर, तो इसका मतलब उससे आप किस तरीके की रेंज ले सकते हो। 1 मिनट पॉज करने देना वीडियो मुझे।
ओके, तो इसको फिर से स्टार्टिंग से समझते हैं। देखो हुआ क्या, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर था आपका, इनफाइनाइट पर था, तो आपने उससे पैरेलल रेज ले ली लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं ली, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, कहीं फोकल प्लेन पर बनेगी। तो यहाँ कहीं फोकल प्लेन है, आप पुराना उठा के देखना फोकल प्लेन क्या होता है, मैं ऑलरेडी सब बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये फोकल प्लेन हो गया, तो यहाँ से रेज आई और इस तरीके से यहाँ पर मिल गई। अब इसके थ्रू जो बनने वाली इमेज है वो इसके लिए किसका वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का। हम चाहते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहे, ये बात समझ में आ रही है। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहे, इसलिए इसका फोकस किधर एज्यूम किया अपन ने, लेफ्ट साइड एज्यूम किया। जब इसका फोकस अपन ने लेफ्ट साइड क्या किया, आपको एज्यूम किया है, तो उस कंडीशन पर हुआ क्या आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है हमें चाहिए कि भाई इस लेंस ने इसकी इमेज कहाँ पर बनाई। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट के पास कोई प्री एग्जिस्टिंग रेज है तो आप नई रेज नहीं लोगे। इस ऑब्जेक्ट के पास पहले से दो रेज थी, तो इन्हीं दोनों रेज को अपन ने क्या कर दिया, इस लेंस पर इंसिडेंट करा दिया। अब ये लेंस कैसा है आपका, ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसने एक रे को इधर कन्वर्ज किया, दूसरे रे को इधर कन्वर्ज किया, तो इधर कहीं दोनों रेज नहीं मिल रही थी, इनको बैक साइड ड्रॉ करने पर इमेज क्या हो गई आपकी, यहाँ पर ये मिल गई। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो इसका ऑब्जेक्ट रखा है उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर ये दैट इज योर, ये हो जाएगी यू नॉट, और सॉरी यू ई हो जाएगी क्योंकि आई पी सही है। और इसकी जो इमेज बन रही है ये कहाँ पर बन रही है आपकी, तो चूंकि ये कौन सा एडजस्टमेंट है आपका, एंगुलर एडजस्टमेंट है, तो इसकी जो इमेज बनेगी बी इज इक्वल टू कैपिटल डी इज इक्वल टू कहाँ पर बनेगी आपकी, 25 सेंटीमीटर पर बन जाए। इतना बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। सो इसकी इमेज कहाँ बन रही है आपकी 25 सेंटीमीटर पर, यही रे डायग्राम। तो रे डायग्राम कैसे क्लियर बने, तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल जाए तो उसकी दोनों रेस को भेज दो। दोनों रेस को भेजने के बाद अभी इधर मत टिल्ट करो क्योंकि आपको नहीं पता है कि रेस कहाँ से आ रही है और कैसे टेंड होगी, बस आपको इतना पता है कि रेस कैसी होंगी आपकी, ये कन्वर्ज होंगी, तो किधर कन्वर्ज होंगी आपको ये आइडिया नहीं। ये बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ सेंटर से उस ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से मिलाते हुए एक लाइन खींचो। इस लाइन पर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ पर क्या ले लो आप, ये इमेज ले लो। ये बात समझ में आ रही, जहाँ भी इच्छा हो वहाँ पर क्या ले लोगे आप, ये इमेज ले लोगे। तो जहाँ पर भी आपने इमेज लिया उससे इन दोनों रेस को, ये जो दोनों रेस गई थी उन दोनों रेस के पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से मिलाओ और फिर इधर डार्कर करते हुए खींच दो। तो ऐसा लगेगा जैसे रेज आई इधर और इधर चली गई और इधर कट नहीं की, तो बैक साइड ड्रॉ करने पर यहाँ पर कट कर दी तो क्या बन गई आपकी, इमेज बन गई। इस इमेज की डिस्टेंस मुझे कैसे पता कि 25 सेंटीमीटर पर है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर एंगुलर एडजस्टमेंट, जहाँ पर इमेज की डिस्टेंस कहाँ पर रहती है आपकी, 25 सेंटीमीटर पर ही रहती है। ये बात समझ में आ रही है। It is about the ray diagram of your astronomical refracting telescope in its angular adjustment. ये बात समझ में आ रही है। Now it's time to calculate the magnifying power of the telescope. So we know about the magnifying power. M is equal to क्या होता है आपका, ये बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं, that is your angle made by image at I. Angle made by image at क्या होता है आपका ये I, and whole divide by क्या होता है आपका ये, that is your angle made by object at I. Angle made by object at I. ये बात समझ में आ रही है। That is the alpha, that is the beta. Sorry, ऊपर वाले को बीटा बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं अपन, ये अल्फा बोलते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और रखा रहता है, and when it is placed at capital D from I. ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज तुमको क्लियर है, एंगल मेड बाय इमेज एट आई, जो बीटा जिसको बोल रहे हैं अपन ये, तो यहाँ पर ये फाइनल इमेज है। तो फाइनल इमेज है आई के साथ, आई किस लेंस से लगा, आई पीस के साथ। तो मैंने कहा जो एंगल ये आई के साथ कहता है उसको आई के साथ ना निकालो, उसको उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के साथ निकालो जो आई के साथ कांटेक्ट में। तो आई के साथ कांटेक्ट में कौन सा, आई पीस, ये फाइनल इमेज है। तो फाइनल इमेज का इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के साथ बनने वाला एंगल यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये बीटा हो गया। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर। अब क्या कह रहा है ये कि एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, कि ऑब्जेक्ट ने आई पर कितना एंगल बनाया, और जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो आपका, कैपिटल डी पर रखा हो। तो सोचो कि अगर हम इतना हमारे लिए पॉसिबल होता कि ऑब्जेक्ट को अपन कैपिटल डी पर ले आके रख सकते थे, तो क्या इसके लिए टेलीस्कोप लगाने की जरूरत थी।
अब अपन टेलीस्कोप से मून को देख रहे हैं, हम कह रहे हैं मून को अपने आई से 25 सेंटीमीटर पर रखो। कैपिटल टी 25 सेंटीमीटर ही तो है, क्या पॉसिबल है? क्या नहीं है, क्योंकि मून हमसे बहुत दूर है यार, उससे अपन 25 सेंटीमीटर पर रख ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर इस कंडीशन को क्या कर दिया जाता है, टेलीस्कोप के केस में इस कंडीशन को हटा दिया जाता है और सिंपल सा बोला जाता है कि एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, दैट इज योर अल्फा। अब ऑब्जेक्ट ने आई पर कितना एंगल बनाया, ये बात समझ में आ रही है? तो अब ध्यान सुनना ये कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये अपना टेलीस्कोप है, दोनों बीच में इनफाइनाइट लेंथ है। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है और ये जो टेलीस्कोप है ये इसका ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये क्या आई पीस है। इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, बहुत बड़ा टेलीस्कोप नहीं होता कि इनके बीच में कम से कम 10-12 किलोमीटर का गैप हो जाए। ये बात समझ में? हार्डली जो गैप होता है इसमें ये 1 फीट 2 फीट का गैप होता है, मतलब लगभग इतना गैप। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से जो रेज आई, हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट का एंगल इस लेंस के साथ चाहते हैं, आई पीस के साथ चाहते हैं। तो जो भी रेज आ रही पहले किस पर आ रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस पर, फिर किसके साथ जा रही है, आई पीस के साथ जा रही है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इनफाइनाइट से अगर इस टेलीस्कोप को देखोगे, अगर ये दिखाई देता तो एक पॉइंट ही दिखाई देगा, और अगर दोनों लेंस एक पर्टिकुलर जगह में एक पॉइंट दिखाई देंगे तो आप ऑब्जेक्ट से किसी भी लेंस का यहाँ एंगल ले सकते हो। तो यहाँ पर जो अल्फा लिया जाता है वो कहा तो जाता है कि ऑब्जेक्ट का किससे लेना, आईपीस के साथ, लेकिन चूंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है इसलिए ऑब्जेक्ट का एंगल किसके साथ ले लेते हैं आप, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ ले लेते हैं। और जितना एंगल यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ होगा, सेम एंगल ही किसके साथ होगा, आपका ये आईपीस के साथ होगा, क्योंकि दोनों बीच में गैप बहुत कम है और ऑब्जेक्ट दोनों से इनफाइनाइट पर रखा है। तो जैसा ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव दिखाई देगा वैसा ही ऑब्जेक्ट को क्या दिखाई देगा, आपको ये आईपीस दिखाई देगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अल्फा और बीटा में क्या हिसाब किताब गड़बड़, स्पेशली इन द हिसाब किताब ऑफ योर अल्फा। क्यों मैंने अल्फा इसको बोला, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो एंगल चाहिए वो आई के साथ चाहिए, और आई के साथ का मतलब इस लेंस के आईपीस के साथ चाहिए। तो यहाँ पर ये जो लेंस है आपका, ये लेंस और इस लेंस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। यार अगर दो बच्चे हैं, अगर दो सपोज इस तरह के दो मार्कर ले लूँगा और दो फिंगर है, दो फिंगर को अगर तुमसे दूर लेते जाऊँगा तो एक थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ये दो फिंगर नहीं, कैसे फिंगर है, सिंगल फिंगर है। मतलब आपकी क्लियरिटी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा आपकी वहाँ पर ये डाउन हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है? तो फिर तो ये इनफाइनाइट से हैं, तो जितना ऑब्जेक्ट को आईपीएस दिखाई देगा उतना ऑब्जेक्टिव दिखाई दे, इसलिए सारा एंगल किसके साथ ले लेते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव के साथ, और इसी को अल्फा बोल देते हैं। अच्छा, अगर ये अल्फा है तो यहाँ से ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो रेज जा रही है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये अल्फा ही हो जाएगा। अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो सबसे पहले अगर अल्फा पता है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, tan अल्फा, और बीटा पता है तो क्या निकालना पड़ेगा, tan बीटा। फिर उसी की वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, अपने को वहाँ पर ये पुट करना पड़ेगा और इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल देख रहे हैं अपन, ये अगर इस ट्रायंगल में देखते हैं अपन, ये इन ट्रायंगल C1 C2, क्लियर, इस पूरे ट्रायंगल में देख रहे हैं आप, ये एंगल कितना है आपका, ये दैट इज योर अल्फा, क्लियर। यहां बना देते हैं ठीक। तो यहां पर देखो, ये दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है C1 AB C1 और एक ट्रायंगल ये वाला, ये इसी को देख रहे हैं, इन ट्रायंगल C1 AB, क्लियर। यहाँ tan अल्फा लगा दो आप, ये tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना हो जाएगा, AB डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये दैट इज योर BC1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से अगर अल्फा बहुत स्मॉल हुआ तो tan अल्फा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका अल्फा में। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB डिवाइड बाई कितना आ गया आपका, ये BC1 आ गया। ये बात समझ में आ रही है? सिमिलरली यहाँ पर ये एक बीटा एंगल भी है। बीटा एंगल किससे किससे कंसर्ट है, एक तो इससे कंसर्ट है और दूसरा किससे कंसर्ट है, एक तो इससे कंसर्ट है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल को ले लें, ध्यान सुनो, ये इन ट्रायंगल ABC2 tan बीटा अगर निकाल लें तो tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस कितना है आपका यहाँ से BC2। ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ से अगर tan को गायब कर दे तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB डिवाइड बाई BC2, और अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, AB डिवाइड बाई BC1 आ रहा है। तो M इज इक्वल टू जो कि क्या होता है आपका, ये दैट इज योर बीटा डिवाइड बाई अल्फा। तो बीटा की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, कितनी आपकी है, AB डिवाइड बाई BC2, और अल्फा की वैल्यू कितनी यहाँ पर आपकी है, दैट इज योर AB डिवाइड बाई
बी सी वन, ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बी सी वन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया ये, दैट इज योर बी सी वन डिवाइड बाई कितना हो गया आपका ये बी सी टू। अब वैल्यूज रखोगे तो इस लेंस के रेस्पेक्ट में बी सी वन है, बी सी वन कितना है आपका बी सी वन जो कि किसके इक्वल है एफ नॉट के, और बी सी टू किसके इक्वल है जो कि किसके इक्वल है यू के इक्वल है। लेकिन इस लेंस से लेफ्ट साइड है तो ये माइनस होगा और इसकी फोकल लेंथ है तो ये प्लस में होगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये एफ नॉट डिवाइड बाई माइनस यू ई। तो जो मैग्नीफाइंग पावर आ रही है ये कितनी आ गई, एफ नॉट डिवाइड बाई माइनस यू ई आ गई। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इन इट्स एंगुलर एडजस्टमेंट। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? इसको ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हो, इसको अगर बहुत ज़्यादा डेरिवेशन आपको थोड़ा सा एलोंगेटेड करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, लेंस मेकर्स फार्मूला लगा सकते हो। लेंस मेकर्स फार्मूला किसके लिए, आप आईपीएस के लिए लगा सकते हो। तो अगर आईपीएस के लिए अपन लेंस मेकर्स फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला, तो 1/v किसके लिए लगा रहे हैं अपन ये, फॉर आईपीएस के लिए ही, क्लियर। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 1/f हो जाएगा। सो यहाँ से अगर देखोगे इसकी इमेज किधर है, लेफ्ट साइड कितनी डिस्टेंस पर है, माइनस डी डिस्टेंस पर, 1 डिवाइड बाई माइनस डी, माइनस ऑब्जेक्ट भी किधर है, लेफ्ट साइड पर ही हुई, और इसकी फोकल लेंथ कैसी यहाँ पर आपकी है, बिल्कुल आपकी ठीक ठाक है, दैट इज 1/f। सो यहाँ से कितना हो गया आपका ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/d को इधर ले जाओगे तो ये 1/ue की वैल्यू कितनी आ गई आपकी है, दैट इज 1/fe प्लस कितना आ गया 1/d। इसको और फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा d प्लस एफ ई डिवाइड बाई एफ ई इंटू कितना आ जाएगा आपका ये d आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। और अपने पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला अपने पास है ही है, m इज इक्वल टू कितना है आपका ये माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई कितना है आपका यहाँ पर ये, दैट इज योर यू है, जिसको बोलना इक्वेशन नंबर है। इसको यहाँ से हटाते हैं, क्लियर। इसको और क्या लिख सकते हो, ये क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, माइनस एफ नॉट इंटू 1/u। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर 1/u की वैल्यू और 1/u की वैल्यू को क्या कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, और वो वैल्यू कितनी है, तो वो वैल्यू 1/fe प्लस 1/d है। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, जो मैग्नीफाइंग पावर है वो हो जाएगी माइनस एफ नॉट, और 1/u की वैल्यू रख देंगे तो 1 डिवाइड बाई एफ ई प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ये d हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है आपकी, ये मैग्नीफाइंग पावर है किसकी, आपकी ये टेलीस्कोप की। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान सुनिए, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, अगर ये केस किसके लिए होता, आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए होता, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, इसके फोकस पर होता। मतलब ये जो एफ ई है ये कहाँ पर होता है आपका एफ ई, यहाँ पर ध्यान सुनना है, इसका फोकस तो ऑलरेडी एफ नॉट पर है, और अगर ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस होता तो ये ऑब्जेक्ट जो इसका ऑब्जेक्ट है ये भी कहाँ पर होता है, इसी के मतलब दोनों के फोकस कोइंसाइड कर रहे होते, यहाँ से यहाँ तक इसका फोकस होता है, यहाँ से यहाँ तक इसका फोकस होता। तो अगर ये नॉर्मल एडजस्टमेंट होता तो यू ई किसके इक्वल हो जाता है, एफ ई के, और एफ ई कहाँ पर आ जाता है, कहीं ये यहाँ पर आ जाता है। और अगर यहाँ पर आ जाता तो इसका रे डायग्राम कैसा बनता, तब इमेज आपकी 25 सेंटीमीटर पर नहीं बनती, तब इमेज आपकी कहाँ बनती, आपकी ये इनफाइनाइट पर बनती थी। मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे, कि अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर ये इस तरीके से, क्लियर। अगर कौन सा एडजस्टमेंट है, अगर आपका ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा आपका ये, कि दैट इज योर, जो रेज आएंगी, ये ऑब्जेक्ट जो इसकी इमेज है, जो इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, इसके फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट से जो दो रेज निकले ना, इनको कन्वर्ट करा के पैरेलल रेस कर देना। जब पैरेलल कर दो इधर कट नहीं करेंगी, और इधर भी कैसी चली जाएंगी आपकी, ये पैरेलल चली जाएंगी, इधर भी कट नहीं करेंगी, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, इसकी इनफाइनाइट पर बन जाएगी। लेकिन अगर ये नॉर्मल एडजस्टमेंट हुआ तो यू ई किसके इक्वल हो जाना, एफ ई के इक्वल हो जाना। सो फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन नंबर ए से इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी है, माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई कितनी हो जाएगी आपकी, ये एफ ई हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है। यू ई की जगह क्या रख दोगे आप, ये एफ ई रख दोगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिसाब किताब और है, ये पूछा करता है कभी कभी ये, कि लेंस के ऊपर जो ट्यूब जो माउंटेड रहती है, क्लियर, एक ट्यूब रहती है जो माउंटेड रहती है, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, क्लियर। या कभी नहीं पूछ लेता है कि भाई इस टेलीस्कोप के लेंसेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, जो कि माइक्रोस्कोप में भी पूछता है, तो उसको हम बताना भूल गया था, तो यहाँ पर दोनों कवर कर लेते हैं। तो आपसे पूछता है लेंथ ऑफ ट्यूब,
क्या पूछता है यहाँ पर आपका ये लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या है आपका एल, ये बात समझ में आ रहा है। कह रहा ट्यूब्स के बीच में कितनी लेंथ होगी, ये बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले पूछता है एंगुलर एडजस्टमेंट में कितनी लेंथ होगी। तो एंगुलर एडजस्टमेंट में लेंथ का मतलब C1 से C2 का गैप। तो जब ये एंगुलर एडजस्टमेंट था तब ये वैल्यू तो एफ नॉट थी और ये वैल्यू यू ही थी। तो टोटल गैप कितना था यहाँ से यहाँ तक आपका ये एफ नॉट प्लस यू ही था, लेंसेज के बीच का गैप। और जब लेंथ निकालते हैं ना तब यहाँ पर कोई भी साइन कन्वेंशन नहीं रखते क्योंकि लेंथ वगैरह हमेशा प्लस ही आनी। ये बात समझ में आ रही है, इसलिए मॉड लगा दिया। फिर यहाँ पर पूछता है कि इन्हीं ट्यूब्स के बीच में लेंथ बताओ जब कौन सा एडजस्टमेंट हो, एंगुलर नॉर्मल एडजस्टमेंट हो। तो अगर ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो यूई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ही के। यूई की जगह एफ ही रख दोगे तो कितना आ जाएगा, एफ नॉट प्लस एफ ही आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। सो जो यहाँ पर एल जो बता रहा हूँ दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब जिसके अंदर लेंस क्या आपका माउंटेड है। या तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि इसको आप बोल सकते हो कि दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंसेज। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। अब यहाँ पर ध्यान सुनाइए, कल जब अपन ने माइक्रोस्कोप पढ़ा था तो माइक्रोस्कोप का जब एंगुलर एडजस्टमेंट वाला जो केस था, एंगुलर एडजस्टमेंट के केस में ध्यान से देखना, एक लेंस यहाँ पर था दूसरा लेंस यहाँ पर था, क्लियर। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं यहाँ बनी थी, जहां भी इमेज बनी थी ये डिस्टेंस कितनी थी आपकी V नॉट और ये डिस्टेंस कितनी थी आपकी ये यू ही थी। आप देखना इसको ही। तो अगर कोई पूछे कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ट्यूब की लेंथ कितनी थी और आंसर मस्ट भी हो V नॉट प्लस यू ही, लेकिन ये कभी भी साइन कन्वेंशन के साथ नहीं रखे जाएंगे। रख रहे हो तो मॉड लगा के रखना क्योंकि लेंथ हमेशा प्लस में आएगी। लेकिन जब यही आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट हुआ था तो यू ही किसके इक्वल हो गया था, एफ ही के। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में कितनी लेंथ आएगी, दैट इज योर V नॉट प्लस कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपकी ये एफ ही आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें ये, डन। सो आपके पास यहाँ पर क्या है कि आपने सिंपल माइक्रोस्कोप भी खत्म किया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी खत्म किया और ये टेलीस्कोप भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। मैंने इसके दोनों रे डायग्राम बताया आपको, नॉर्मल एडजस्टमेंट का भी बताया, एंगुलर एडजस्टमेंट का भी बताया आपको ये रे डायग्राम, और दोनों की मैग्नीफाइंग पावर भी मैंने क्या की है यहाँ पर आपकी ये कैलकुलेट की। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। सो इसके बाद आते हैं आपका ये, तो एक लास्ट टेलीस्कोप बचता है दैट इज योर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में दैट इज योर ये है कैसे ग्रेनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसका केवल और केवल हमको क्या पढ़ना है, इसकी केवल और केवल हमको कंस्ट्रक्शन पढ़नी है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ अभी ये, ठीक है। तब तक मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ और आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज करो उसे। सो कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप में ये क्या उसका कंस्ट्रक्शन, कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप में क्या होता है आपका ये एक ट्यूब होती है, पूरा टेलीस्कोप, यहाँ पर लेंस रहता है और इधर से लगा कर ये इस पूरे टेलीस्कोप को क्या करते हो आप ऑब्जेक्ट को देखते हो। तो ऑब्जेक्ट कहीं इधर पर रहेगा ये, और ये पूरा का पूरा ट्यूब आप कैसे करते हो, आई के सामने रखते हो, क्लियर। इसमें दो मिरर होते हैं, ये फर्स्ट मिरर होता है जिसके बीच में एक हल्का सा होल किया जाता है और उस होल में क्या लगाया जाता है आपका आई पीस, या वहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस अपन लगाते हैं और वही आई के साथ कॉन्टैक्ट रहे। और बीच में यहाँ पर क्या रखा जाता है आपका एक और मिरर रखा जाता है इस तरीके से, डन। तो यहाँ मिरर में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो बीच में कौन सा मिरर रखना है आपको, ये इस तरीके से रखना है। ये कौन सा मिरर है, ये वाला, ये तो दैट इज योर कॉनकेव मिरर। और ये कौन सा मिरर है आपका, दैट इज योर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो मिरर चूंकि सिलेबस में नहीं था इस साल के, इसलिए इसको पढ़ाया ही नहीं मैंने बिल्कुल भी, ठीक है। और कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये अननेसेसरी एक टॉपिक है, वैसे भी टाइम कम है, कंज्यूमिंग टॉपिक, ठीक। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा इनफाइनाइट पर टेलीस्कोप के केस में, तो ऑब्जेक्ट से अपन ने रेज ली। और ये जो लाइन है ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है सारे मिरर्स की और एक लेंस की। तो रेज कैसी ली इस बार मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ली। ये अरेंजमेंट ही ऐसा होता है कि रेज आती है कैसी आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही तो ये जो मिरर है इसको रिफ्लेक्ट करके किधर भेजेगा, अपने फोकस पर। कॉनकेव मिरर का फोकस किधर होता है, लेफ्ट साइड। तो सपोज इसका फोकस कहीं यहाँ पर है, ये रेस को कहाँ भेजता है आपका, ये यहाँ पर इस तरीके से भेजने की कोशिश करता है, करेक्ट। ये रेस को क्या करता है, यहाँ पर ये भेजने की कोशिश कर रहा था कि रास्ते में ही कौन आ गया आपका, ये सेकेंडरी मिरर आ गया। और जब रास्ते में ही आपका ये सेकेंडरी मिरर आ गया तो इसने रेस को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब ये रेस को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये कौन सा मिरर है आपका, ये कॉनकेव मिरर है, और सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये रेस को क्या करता है आपका, डाइवर्स करने की कोशिश करता है। तो अगर रेस इधर आई है
ये किधर डाइवर्स कर देगा इसको, ये दैट इज योर इधर की ओर, ठीक। और इस रेस को किधर डाइवर्स कर देगा आपका, इधर की ओर डाइवर्स कर देगा ये, मतलब रिफ्लेक्ट कर देगा। रेज इधर आई तो इसने इधर रिफ्लेक्ट कर दिया, उसने इधर रिफ्लेक्ट कर दिया, और हमारी आई पर जाकर क्या बन गई, ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई, क्योंकि फाइनल इमेज वहां बनेगी जहां पर ये दोनों रेस कट करेंगे। ये बात समझ में आ रहा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। क्लियर। इसकी वर्किंग को आप देखो। आई नीड वन लेक्चर टू फिनिश द सम मोर कंसेप्ट ऑफ द ऑप्टिक्स। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ छोटे हुए हैं। जैसे आई हैव टोल्ड अबाउट द टू टाइप्स ऑफ रेज। सबसे पहले कौन सी रेज होती है आपकी, ये प्रैक्सियल रेज होती है, और दूसरी कौन सी रेज होती है आपकी, ये दैट इज जो मार्जिनल रेज होती है। एज वेल एज वी हैव टू स्टडी अबाउट समथिंग योर डिस्पर्जन। डिस्पर्जन की बात थोड़ा सा हमको पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हालांकि ये सब कुछ सिलेबस से लिटिल बिट थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ हटा है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो एक बार इसको पढ़ लेंगे, बहुत ही हार्ड टॉपिक नहीं है बिल्कुल भी है, तो इसको आप कवर करोगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ ये, कि एक क्वेश्चन है जो बहुत बार बार पूछा जाता है कि राइट डाउन द टू एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो आप उसका मुझे एडवांटेजेस बताओगे, और तब बताना जब आपको एग्जैक्टली एडवांटेजेस क्या हो जाए, आपको ये समझ में आ जाए। ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अजीब से वर्ड लिखे रहते हैं, क्रोमेटिक एब्रेविएशन, स्फेरिकल एब्रेजन, कुछ ऐसे टाइप्स के वर्ड रहते हैं, जिनको जब आपको सब समझ में आ जाए तभी मुझे बताना ये कि हाँ सर ये मुझसे हो गया, और नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको बता ही दूंगा। तो एक नेक्स्ट वीडियो चाहिए मुझे जस्ट बेसिक, और एक वीडियो ऐसा चाहिए जिसमें टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल, और एक वीडियो ऐसा भी चाहिए जिसमें प्रिज्म के भी क्या हो आपके न्यूमेरिकल्स हो, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के भी न्यूमेरिकल्स हो। तो हार्डली इस हफ्ते में अपन क्या करेंगे, ऑप्टिक्स को निपटाएंगे पूरा, ये संडे तक इसको फिनिश करेंगे। फिर अपन आ जाएंगे वेव ऑप्टिक्स में। उसका टारगेट अपन ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 हफ्ते रखेंगे, और उसकी लाइव क्लास लूंगा, तब तक मेरा मोबाइल सही हो जाएगा ही। और लाइव क्लास होगी तो 1-1.5 घंटे क्लास हुआ करेगी, तो उसमें भी सफिशियंट मैटर आपको कवर हो। इस महीने का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट सेकेंड पार्ट पूरा खत्म करने का है, ऑलमोस्ट। क्लियर। कितना हो पाता है वो तो देखते हैं ये, लेकिन इस महीने का पूरा टारगेट सेकेंड पार्ट को फिनिश करने का। ओके, सो थैंक यू। इसको आप पढ़ो अच्छे से। ओके बच्चा।